So in our previous classes, we have completed Mal, after then Nidra, then Man. In last classes, we have completed physiological and the clinical significance of Man. So in continuation of the same, today we will see the Panch Gyanendriya. That is a small chapter that in the syllabus of the physiology second paper, Ayurvedic portion. So in that chapter, we will see the Panch Gyanendriya, what it is, what are the Sabd, Sparsh, Roop, Ras, Gandh, and the last important question that comes in the exam, that is Gyan Grahan ki Prakriya, the mechanism of Gyan Grahan. The mechanism of Gyan Grahan, that is Gyan Grahan ki Prakriya. That is an important question that comes in exam for 10 marks. And there is another important question that comes in exam, that is Indriya Panch Panchak. ठीक है, तो these are the two important questions that comes in exam for 5 marks or 10 marks. One is the mechanism of the obtaining the knowledge, and second one is the indriya panch pancha. ठीक है, along with this the 2 marks question that come in the exam, that is कर्मेंद्रिय. So what are the names of कर्मेंद्रिय? So these are the 3 questions that come in the exam for 5 marks और 2 marks. ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं. तो after that, from tomorrow onwards, I will start the modern second paper that I will start from my book. So today I think the most of portions, not most of portion, the maximum portion is completed except Atma. Atma is a very popular question that comes in Padarth Vigyan. So I'm leaving the topic Padarth Atma. In that physiology second paper, Ayurvedic portion, the everything is completed in second paper. If you have any doubt, you can ask me कि sir ये पढ़ा दीजिए, मैं बाद में पढ़ा दूंगा. So from tomorrow classwards, we will study the modern. ठीक है. So today we will complete the Panch Gyanendriya. So let's see first what is the Nirukti, what is Atma, what is Indriye. जैसे मैंने पहले भी बताया कि what is the Indriye, तो there is a famous श्लोक इंद्र आत्मा तस्य साधनम इंद्रिये. तो इंद्र आत्मा तस्य साधनम इंद्रिये. It means what it means. It means the instrument which is used to know the Atma. The instrument which is used to know the Atma is known as Indriye. तो इंद्रिय कैन बी क्लासिफाइज एज द बाह्य इंद्रिय एंड द आभ्यंतर इंद्रिय. तो अगर हम इंद्रिय को क्लासिफाई करेंगे तो दैट कैन बी क्लासिफाइड एज द बाह्य इंद्रिय एंड आभ्यंतर इंद्रिय. द बाह्य इंद्रिय कैन बी क्लासिफाइज एज द ज्ञानेन्द्रिय एंड कर्मेंद्रिय. दे आर द 5 ज्ञानेन्द्रिय एंड 5 कर्मेंद्रिय. 5 plus 5 10, and one is the abhyantar indriya, that is man, that is also known as ubhendriya. So how many indriyas are there? Total 11. How many indriyas? 11. What is indriya? Indra Atma Tasya Sadhanam Indriya. The instrument which is used to know the knowledge, instrument which is used to perceive the Atma, instrument which is used to perceive the living being behavior, that is Indriya. The Indriya are of 11 and that can be classified into Bahya and Abhintar. 10 is Bahya and 1 is Abhintar. So the total is 11. Next, we will see the Gyanendriya. Gyanendriya is of 5 types: Chachchundriya, Shrotendriya, Ghrhanendriya, Rasnendriya, Sparsnendriya. ठीक है, चक्षु, श्रोत, घ्राण, रस एंड स्पर्शनेन्द्रिय. तो ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान प्राप्ति का साधन है. तो इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्टेन द नॉलेज, तो इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू ऑब्टेन द नॉलेज इज नोन एज ज्ञानेन्द्रिय. These are the 5: Chakshu, Shrot, Ghan, Ras, and Sparsnendriya. So how you can say what is Indriye? This is important that can be asked in the examiner. What is Indriye? So the instrument which is used to perceive the Atma is known as Indriye. The instrument which is used to perceive the knowledge, that is Gyanendriye. ठीक है, तो लास्ट फर्स्ट वी विल सी द चक्षु इंद्रिय. तो रूप उपलब्धि साधनम इंद्रिय चक्षु. तो रूप उपलब्धि साधनम इंद्रिय चक्षु, इस मीन्स द इंस्ट्रूमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल परसेप्शंस, जिसके थ्रू आप देख पाते हैं, दैट इज चक्षु इंद्रिय. तो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि आंख चक्षु इंद्रिय नहीं है ना. चक्षु इंद्रिय की सीट आंख है. द सीट ऑफ द चक्षु इंद्रिय इन योर बॉडी इज द आईज. कुछ लोगों की आंख होती है फिर भी नहीं देख पाते हैं. Why? Because eyes is not the organ for vision according to Ayurveda. Chakshu Indriya is responsible for perception of the vision, and the seat for Chakshu Indriya is the eye. ठीक है. Next we will see the Shrotendriya. शब्द उपलब्धि साधनम श्रोतम. तो instrument which is responsible for auditory perception, that is Shrotam. Next we will see Ghanendriya. So Ghanendriya, the instrument which is responsible for olfactory perception, that is Ghanendriya. The instrument which is responsible for olfactory perception,
that is Granendriya. Then Rasnendriya, the instrument which is responsible for the gustatory perception, that is Rasnendriya. तो इंद्रिय जो थी वो ज्ञानेंद्रिय 5 तरीके की थी: चक्षु, श्रोत, गंध, रस और स्पर्श। स्पर्शनेंद्रिय: स्पर्श उपलब्धि साधनम इंद्रिय स्पर्शनम। तो ये एक एक लाइन के श्लोक है, इनको पढ़ने रटने की जरूरत नहीं है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर ऑडिटरी परसेप्शन इज श्रोतेंद्रिय। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, that is घ्राणेन्द्रिय। The instrument which is responsible for gustatory perception, that is रसनेन्द्रिय। The instrument which is responsible for tactile perception, that is स्पर्शनेन्द्रिय। है ना? So we were studying the indriya. The indriya are the object, instrument that are used to perceive the atma, that can be categorized as two: bahya and abhintar. Bahya are the 10, abhintar is the 1, and the bahya can be further categorized into gyanendriya and the karmendriya. Gyanendriya are the instrument which are used to perceive the knowledge. These are chakshu, shrot, ghraan, gandh, and sparsh. So, instrument which is responsible for auditory perception, that is Srotendriya, which is responsible for olfactory perception, that is Ghanendriya, which is responsible for gustatory perception, that is Rasnendriya, which is responsible for tactile perception, that is uh, स्पर्शनेन्द्रिय। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 5 ज्ञानेन्द्रिय। अब ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, इनके जो ऑब्जेक्ट्स है, तो दैट इज शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की शारीरिक क्रिया। इसका मतलब फिजियोलॉजी ऑफ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो जो ऑब्जेक्ट जो इन इंद्रियों के द्वारा परसीव किए जाते हैं, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये ऑब्जेक्ट्स है जो कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परसीव किए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द। शब्द का जो श्लोक है: श्रोत मात्र ग्राह्य गुण शब्द। इसका मतलब क्या है? The guna which is perceived by Shrotendriya, the object which is perceived by Shrotendriya is known as Sabd. Sabd is of many types that can be classified as a Dhvanyatmak and Varnatmak, that can be classified as a Sarthak and Niranthak, that can be classified as a Sat, Anirat, Adrastarth and Drastarth. These are the various classifications. इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिजियोलॉजी में ये सब नहीं आता है। जो फिजियोलॉजी में जो मैंने क्वेश्चन बताए 3 वही आएंगे, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो जो आपकी इंद्रियाँ थी, इंद्रिय 2 प्रकार की थी, एक बाह्य और एक आभ्यंतर। बाह्य वाली फिर से 2 तरीके से क्लासिफ़ाई की गई थी, एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय 5 थी, जो रेस्पेक्टिवली सेंस ऑर्गन के परसेप्शन के काम आती हैं, लाइक ऑल्फैक्टर के जो ऑल्फैक्शन के जो काम आएगा, उसको घ्राणेंद्रिय बोलेंगे। ऑडिशन के जो काम आएगा, उसको श्रोतेंद्रिय बोलेंगे। टैक्टाइल के काम आएगा, उसको स्पर्शनेंद्रिय बोलेंगे। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध क्या है? ये आपके 5 सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको डिटेल में पढ़ना, ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, फिजियो में नहीं आता है। नेक्स्ट वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ ज्ञान ग्रहण। दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम। द मैकेनिज्म ऑफ ज्ञान ग्रहण, ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया। ये पदार्थ विज्ञान में भी आ सकता है और फिजियो में भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ज्ञान ग्रहण, तो इसको ध्यान से पढ़ो। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी तरह की नॉलेज को परसीव करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या हैं? आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रियार्थ। So there are the following 4 elements that play the very important role in the process of ज्ञान ग्रहण. These are the आत्मा, मन, इंद्रिय एंड इंद्रियार्थ। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर, आत्मा, मन, इंद्रिय एंड इंद्रियार्थ, जब तक ये 4 फैक्टर का कोरिलेशन नहीं होगा, जब तक ये 4 फैक्टर आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे, टिल द टाइम यू कैन नॉट परसीव द नॉलेज। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले आत्मा, ज्ञान अधिकरणम आत्मा। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा इज द सीट ऑफ नॉलेज। आपकी बॉडी जो कुछ भी कर रही है, हम सांस ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द आत्मा। आत्मा इज द डूअर, आत्मा करता है। विद हेल्प ऑफ द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, आत्मा यूज शरीर टू गेट द नॉलेज। तो आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आत्मा। आप सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे हैं, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द आत्मा। अगर आपकी बॉडी से आत्मा चली जाएगी, तो सारे सेंस ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे। तो दैट इज आत्मा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन द प्रोसेस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ज्ञान ग्रहण, दैट इज मन. मन is the second important factor which correlate with the atma
and then with the indriya and make them capable to understand its object. तो जब तक होता है ना क्लास में, मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप क्लास में बैठे हैं, लेकिन क्लास में बैठे होने के बावजूद भी आप नहीं सुन पा रहे हैं, है ना? अभय प्रताप सिंह नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? उनके कानों में लीड लगी है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन पा रहे। व्हाई? बिकॉज़ उनका मन उनके साथ नहीं है। तो किसी भी चीज़ को, आप किसी भी नॉलेज को परसीव करने के लिए आप वो नॉलेज तभी परसीव कर सकते हैं जब आपका मन आपके साथ हो, जब आपका मन कोरिलेट करे। तो मन किससे कोरिलेट करे? 2 चीज़ों से। एक तो आप ज़िंदा हैं क्योंकि आपकी बॉडी में आत्मा है। तो जो मर जाएगा उसकी बॉडी में तो मन होगा नहीं। तो जो व्यक्ति जिंदा है मतलब उसकी बॉडी में आत्मा है। आत्मा पहले उसके मन से कोरिलेट करेगी और मन सेंस ऑर्गन से कोरिलेट करेगा, और सेंस ऑर्गन जो है वो उस ऑब्जेक्ट से कोरिलेट करेंगे। कैसे? जैसे मैं अब क्लास में बोल रहा हूँ, ठीक है? आप सब लोग क्लास में बैठे हुए हो, तो आपका क्या हो रहा है? आप में आत्मा है इसलिए जिंदा बैठे हो ना। अब आपका आप क्लास में पढ़ने के लिए आए हो, तो आपका आत्मा मन से कह रही है भाई कोरिलेट करो। और फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप श्रोतेंद्रिय की सहायता से सुन पा रहे हैं, तो आपका आत्मा, मन और श्रोतेंद्रिय आपस में कोलेट कर रही हैं। और किस पे ध्यान दे रही है? जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पे। तो 4 चीजें हुई, एक आत्मा, एक मन और एक इंद्रिय और चौथा इंद्रिया। तो बेसिकली होता क्या है? व्हेन वी वांट टू परसीव द नॉलेज, आत्मा कोरिलेट विद द मन एंड मन कोरिलेट विद द पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन, and when this atma, man and sense organ correlate with the object of sense organ, then we perceive the knowledge. तो इस तरह से हम ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। तो मन का होना बहुत जरूरी है। समटाइम्स क्या है, आत्मा है मतलब आप जिंदा हो, आंखें भी हैं और सामने वाली चीज भी है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही। होता है ना कि आप क्लास में बैठे हो, मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी क्लास में बैठे हो, लेकिन फिर भी नहीं सुन पा रहे। क्यों नहीं सुन पा रहे? क्योंकि आपका मन को रिलेट नहीं कर रहा। तो किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज को परसीव करने के लिए मन का कोरिलेट होना बहुत जरूरी है। टिल द टाइम मन कोरिलेट नहीं करेगा, आप परसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है? Next page we will see तो नेक्स्ट मतलब आपकी बॉडी में आत्मा हो गई, आपकी बॉडी में मन हो गया, देन इंद्रिय। तो आपकी आंखें तो हैं, लेकिन आपकी आंखों में रॉड एंड कोन्स भी सही से काम करने चाहिए। तो जो भी इंद्रिय हैं वो, आपके कान तो हैं, लेकिन आपके कान को सुनने के लिए जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई रेस्पॉन्सिबल है, वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई सही से काम करना चाहिए। ठीक है? तो आपकी जो सेंस ऑर्गन है, उन सेंस ऑर्गन में जो इंद्रियों की सीट है, वो सेंस ऑर्गन इंद्रियों की सीट पे प्रॉपरली ढंग से बैठे हो, अपना फंक्शन कर रहे हो, तब क्या होगा? आपका आत्मा, आपका मन एंड आपकी सेंस ऑर्गन, ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? जो सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट है उसको रिसीव करने की कोशिश करेंगे। एंड वंस दे विल रिसीव, जब ये तीनों आपस में कोरिलेशन है, कौन कौन? आत्मा, मन एंड सेंसेस। जब आत्मा, मन, सेंसेस आपस में कोरिलेट करके सेंस ऑर्गन के ऑब्जेक्ट को परसीव करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो सेंस ऑर्गन का ऑब्जेक्ट है वो परसीव हो जाता है और हमें नॉलेज मिल जाती है। तो पहले हमने छोटा सा लिखा आत्मा के बारे में कि ज्ञान अधिकरणम ही आत्मा। आत्मा नॉलेज की सीट है, आत्मा डूअर है, जो कुछ भी बॉडी में होता है आत्मा की वजह से ही होता है। फिर हमने लिखा मन के बारे में। तो मन क्या करता है? मन कोरिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। मन की एब्सेंस में जब तक मन कोरिलेट नहीं करेगा, आप जो है नॉलेज परसीव नहीं कर पाएंगे। फिर आपने लिखा इंद्रियों के बारे में कि बेसिकली है क्या? इंद्र आत्मा तत्साधनम इंद्रिय। फिर आप लिखेंगे इंद्रियार्थ। तो इंद्रियार्थ क्या है? इंद्रियार्थ वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपकी सेंस ऑर्गन परसीव करते हैं। वो सारी इंद्रियों के लिए अलग अलग है। जैसे चक्षु इंद्रियों के लिए रूप, घ्राणेन्द्रिय के लिए गंध, श्रोतेंद्रिय के लिए शब्द। तो जो आपकी 5 इंद्रियां आपकी बॉडी में बताई गई हैं, कौन कौन सी? चक्षुन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, शब्द इंद्रिया, वट एवर जो 5 इंद्रियां बताई गई हैं, उन 5 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग है और पर्टिकुलर हैं, स्पेसिफाइड है। जैसे घ्राणेन्द्रिय का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज गंध, है ना? श्रोतेंद्रिय का जो ऑब्जेक्ट है दैट इज शब्द, है ना? तो जो पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन है उनके ऑब्जेक्ट अलग अलग है, and these are the indriya. So these are the 4 things. One is the atma, another is the man, third is the indriya, and fourth one is the indriya. And this slok is important. This slok, what the slok says, ज्ञानम यद इंद्रिये, ज्ञानम यद इंद्रिये अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। तो ज्ञानम यद इंद्रिये अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, इसका मतलब क्या है?
till the time the sense organ will not perceive, since sense organ will not correlate with their object, you will not perceive the knowledge. तो जब तक आपकी इंद्रिय, आत्मा और मन तो है ही, जब तक आत्मा और मन के साथ इंद्रिय अपने ऑब्जेक्ट के साथ सन्निकर्ष संयोग में नहीं आते हैं, तब तक आपको नॉलेज की प्राप्ति नहीं होती है। सपोज 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया कि हाउ द यू परसीव द नॉलेज, ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया। सपोज इफ इट विल कम इन द 5 मार्क्स, आप सिंपली लिख सकते हैं कि ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया के लिए इन 4 चीजों का होना बहुत आवश्यक है, दैट इज आत्मा, मन, इंद्रिय एंड इंद्रियार्थ, है ना। आत्मा क्या होता है, मन क्या होता है, इंद्रिय क्या होता है, इंद्रियार्थ क्या होता है, आप दो दो लाइनें उसमें साथ में ऐड करते चलें और लास्ट में लिख दें, जब तक ये चारों आपस में सन्निकर्ष संयोग से कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक आपको जो है वो नॉलेज परसीव नहीं होगी। ठीक है, दैट्स ऑल। समझ आया? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम फॉर 5 मार्क्स, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ज्ञान ग्रहण, या ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया, या मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू ऑब्टेन द नॉलेज। ठीक है, आप ज्ञान कैसे ग्रहण कर पाते हैं। The second important question that comes in exam, that is इंद्रिय पंचपंचक। इंद्रिय पंचपंचक, तो what is basically इंद्रिय पंचपंचक होते क्या है? तो 5 close correlation of the 5 subject at 5 time is known as पंचपंचक। आपको दिख रहा है ना, नाम ही है पंचपंचक, पांच पांच चीजें 5 तरीके से होंगी, हाँ इसलिए ना पंचपंचक, पंच मतलब 5, पंचक मतलब 5, तो पंचपंचक 5 चीजें 5 तरह से होंगी। तो 5 5 के 5 समवायों को, मतलब ऐसा कोरिलेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें 5 चीजें 5 बार आएंगी, उसे हम पंचपंचक कहेंगे। तो 5 close correlation of the 5 subject at 5 times is known as पंचपंचक। तो महर्षि चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान, एक चैप्टर का नाम है, 8वां चैप्टर है, उसका नाम है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। चैप्टर का नाम है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, उसमें पंचपंचक का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत 5 चीजें 5 बार कॉम्बिनेशन। तो 5 चीजें कौन सी हैं? 5 इंद्रिया, तो 5 इंद्रिया, उनके 5 द्रव्य, उनके 5 अधिष्ठान, उनके 5 अर्थ और उनकी 5 बुद्धि। तो 5 इंद्रियों का 5 चीजों से 5 बार कोरिलेशन, दैट इज पंचपंचक। तो ये जो टेबल है, बहुत सिंपल सी टेबल है, रटना नहीं है, बस एक बार इसको ध्यान से देखना है। 5 इंद्रिय, आपको कोई सी भी 5 इंद्रिय आती हो, चक्षु इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, ऑर्डर जो भी आपने याद किया है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है, पंचेंद्रिय द्रव्य, पंचेंद्रिय द्रव्य, तो कौन सी इंद्रिय में कौन सा महाभूत प्रधान है, कौन सी इंद्रिय में कौन सा महाभूत प्रधान है। जैसे आई वुड से कि घ्राणेन्द्रिय है, तो घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी महाभूत है ना। शब्देंद्रिय है, तो शब्देंद्रिय में आकाश महाभूत है। स्पर्शनेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय में वायु महाभूत है। चक्षुन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय में अग्नि महाभूत है। रसनेन्द्रिय है, तो रसनेन्द्रिय में जल महाभूत है। तो आपको पता है ना कौन सी इंद्रिय में कौन सा महाभूत होता है, तो दैट इज द्रव्य। तो पहला हेडिंग था पंचेंद्रिय, दूसरा हेडिंग था पंचेंद्रिय द्रव्य। तो पहले हेडिंग जो पंचेंद्रिय था, उसमें 5 इंद्रियों के नाम लिखने हैं, सीक्वेंस जो भी आपने याद किया हो, रटना नहीं है। आपको पता है कि चक्षुन्द्रिय में रूप अग्नि, श्रोतेंद्रिय में शब्द आवाज आकाश, गंधे घ्राणेन्द्रिय में गंध पृथ्वी महाभूत। तो आपको पता है कौन कौन सी इंद्रिय के अंदर कौन कौन से महाभूत हैं। तो जो महाभूत है दैट विल कम्स इन द हेडिंग पंचेंद्रिय द्रव्य। देन वी विल सी द पंचेंद्रिय अधिष्ठान। तो जो 5 इंद्रिय हैं, आपको पता है कि चक्षुन्द्रिय है, श्रोतेंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय है, स्पर्शनेन्द्रिय है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की आपकी बॉडी में सीट क्या है, मतलब चक्षुन्द्रिय आंख में रहती है, श्रोतेंद्रिय कान में रहती है, रसनेन्द्रिय जिह्वा में रहती है, घ्राणेन्द्रिय नाक में रहती है, स्पर्शेंद्रिय त्वचा में रहती है। तो ये आपकी बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन है, उनकी सीट क्या है, दैट इज पंचेंद्रिय अधिष्ठान, दैट इज पंचेंद्रिय अधिष्ठान। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था 5 इंद्रिय, सिंपल सी बात थी, 5 इंद्रिय। दूसरा हमने पढ़ा था इंद्रियों के द्रव्य, इंद्रियों के द्रव्य मतलब महाभूत। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था इंद्रियों का अधिष्ठान। तो पहले हमने पढ़ा था इंद्रिय, दूसरा हमने पढ़ा था इंद्रियों के द्रव्य, और तीसरा हमने पढ़ा था इंद्रियों के अधिष्ठान। ठीक है। चौथा आया इंद्रिय अर्थ। इंद्रिय अर्थ मतलब जो ऑब्जेक्ट थे, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, मतलब आंखें देखती हैं, किसको देखती हैं, किसी रूप को देखेंगी ना, दैट इज विजन, दैट इज
विजन। आपकी जो घ्राणेन्द्रिय है दैट विल परसीव समथिंग, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज साउंड, दैट इज नोन एज शब्द। तो जो पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन है उनके जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं दैट इज नोन एज पंचेंद्रिय अर्थ, दैट इज नोन एज पंचेंद्रिय अर्थ। तो हर इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग है। लाइक श्रोतेंद्रिय के क्या है, श्रोतेंद्रिय का शब्द है, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श है, रूप इंद्रिय का रूप है, रसनेन्द्रिय का रस है, और घ्राण इंद्रिय का गंध है। तो आपको पता है ना कि आपकी नाक वाले का काम सूंघना है, तो उसका जो सब्जेक्ट होगा वो गंध होगा। रटना नहीं है, बस समझना है एक बार। उसके बाद आया एक लास्ट हेडिंग, इंद्रिय बुद्धि। इंद्रिय बुद्धि क्या होती है, जो ये 5 तरह के ऑब्जेक्ट्स थे उन्हीं की नॉलेज को आप इंद्रिय बुद्धि कहते हैं। तो पंच पंचक का मतलब क्या है, 5 चीजें। कौन सी 5 चीजें, 5 सेंस ऑर्गन। 5 वार, कौन कौन सी 5 वार, एक द्रव्य, एक अधिष्ठान और एक अर्थ और एक बुद्धि। एक द्रव्य, एक अधिष्ठान और एक अर्थ और एक बुद्धि। तो ये जो 5 चीजें थी, 5 चीजें मतलब 5 सेंस ऑर्गन, वो 5 वार, 5 वार मतलब द्रव्य, अधिष्ठान, अर्थ और बुद्धि। तो उनका जो 5 इंद्रियों का 5 तरह का कॉम्बिनेशन था दैट वाज पंच पंचक। कहाँ पे वर्णित है, आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्रस्थान 8 चैप्टर इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में पंचपंचक का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय बेसिकली क्या होती हैं, जिनके द्वारा कर्मेंद्रिय बेसिकली क्या होती हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कर्म, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एक्शंस। तो आपकी बॉडी में जो डिफरेंट तरह के एक्शंस किए जाते हैं, तो जिसके द्वारा किए जाते हैं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एक्शंस इज नोन एज कर्मेंद्रिय। तो वो 5 तरह की हैं, कौन कौन सी, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये रटने हैं बस, वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ। तो वाक का काम क्या है, आपके जो लैरिंग्स है उसका काम क्या है, बोलना, दैट इज वाक का काम है वाणी उत्पत्ति। पाणी का काम क्या है, हाथों का काम क्या है, आदान प्रदान, चीजों को लेना या देना, एक्सचेंज द गिफ्ट, है ना। तो आदान प्रदान मतलब चीजों को लेना देना। पाद का काम क्या है, पैरों की वजह से हम क्या कर पाते हैं, चलते फिरते हैं, दैट इज बहरण या गमन, बहरण या गमन। पायु का काम क्या है, एनस का मल उत्सर्ग। पायु का काम क्या है, मल उत्सर्ग। एनस का काम एक्सक्रिएशन। देन उपस्थ, उपस्थ मतलब आपकी जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं, इनका काम क्या है, मूत्र उत्सर्ग एवं रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, दैट इज excretion and the help in the reproduction. So these are the 5 कर्मेंद्रिय and 5 ज्ञानेंद्रिय। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, पदार्थ विज्ञान में भी आ सकता है और फिजियो में भी आ सकता है, ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपका आयुर्वेद में साथ नहीं छोड़ेगा, दैट इज इंद्रिय पंच पंचक। बेसिकली इंद्रिय पंच पंचक है क्या, 5 चीजें, 5 तरह से उनका कॉम्बिनेशन कहाँ बताया है, आचार्य चरक ने सूत्रस्थान में इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में बताया। और 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन कि 5 कर्मेंद्रियों के नाम, तो 5 कर्मेंद्रिय सीक्वेंस याद रखना है, वाक, पाड़ी, पाद, पायु, उपस्थ। तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड इंद्रिय, दिस इज द मतलब आपका जो सेकंड पेपर है उसका आयुर्वेदिक पोर्शन है, उसमें एक चैप्टर है इंद्रिय। इंद्रिय में इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा कल वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न। ठीक है, तो दैट्स ऑल।